भारतको स्वभावअनुसार नेपालमा योग उत्पन्न भएको हो, योगको उत्पत्ति नेपालमा भएको या उत्तराखण्डमा भएको भन्नुहुन्न, त्यस बेला हुँदै नभएको भारतको चर्चा भारतीयहरू गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यो भारत चाहिँ त्यस बेला थिएन। भारतमा त रजौटाहरू थिए स्वाभाविक रूपमा, र ससाना रजौटाहरूको त्यो एउटा एक खालको भनौँ न, यो महाद्वीप भन्दा पनि अलिकति उपमहाद्वीप जस्तो दक्षिण एसिया र अलिअलि दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर समेत तिब्बती प्लाटुको जस्तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर खण्ड, अरू विभिन्न जो ब्रह्मलोक बनिएको त्यो ब्रह्मलोकका अरू क्षेत्रहरू समेत उत्तराखण्ड यो भूभागमा, र त्यसमा पनि अघि नै कुरा आएको छ अलिकति कि महर्षि पतञ्जलि जस्ता महर्षिको यहीँ अभ्यास, यहीँ जन्मभएको थियो, यहीँ अभ्यास गरे। कपिल मुनि यहीँ अभ्यास, योगका सांख्य दर्शनका प्रवर्तक र योगका व्याख्याता कपिल मुनि। हेलो, एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, आपको मैंने कम से कम 1 मिनट की वीडियो दिखाई जिसमें से शायद आपको कुछ भी समझ में आया हो। ऑफ कोर्स आएगा भी कैसे, एवरीथिंग वाज सेड इन नेपाली, बट व्हाट वाज सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, विच इज सिग्निफिकेंट बिकॉज वो हमारे इंपॉर्टेंट नेबर हैं जिनके साथ हमें संबंध रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे संबंध रखना स्पेशली। बट व्हाट ही सेड in this video is making us more difficult to establish good relationship with him, as in the video he's claiming that yoga like begin from Nepal and not from India, and actually India has never given the enough credit to Nepal. So we're gonna analyze this case, but let us see how yoga has the Twitter has gone crazy on that term. Like you can see how I can show you little clips. So yoga is originated from Nepal, or Nepal originated from Bharat. Some tweets are like that, but somehow really enough funny and crazy. Like Ram was born in Nepal, yoga was from Nepal, Sachin Tendulkar is Nepali has all 26 letter, but Rasis are Nepali, sun revolves around Nepal, and Big Bang also happened in Nepal. This way Nepal has actually has become place of meme in India, and many people are coming up very innovative tweets in order to convey their message around this कि they're not happy with what has exactly happened. तो अब उस जो difficult language में नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था, now we're gonna analyze everything, and with this stay tuned to me, stay connected to me, let me explain that to you. So now you've got the news, and इसके आगे का काम अब हम पे छोड़ दीजिए। आगे का काम क्या है, to explain you कि from where did it all started, और इसका क्रक्स क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे in our session called Let Us Explain, brought to you by AQBIS. So let's just start, beginning with first section, that is Let Us Explain. Now in this first is from where did it all started, कि ये न्यूज़ एकदम वाइल्डफायर हो कैसे गई। We saw for this we have to begin with the news जो की थी ये that Mr. Yogi Mr. Oli commented upon the yoga by saying that yoga originated in Nepal, and India has always claimed it to be that it is our natural heritage, but this is not true. Apparently ये नेपाल की natural heritage है. So this story became wildfire. जब से ये खबर any news channel has picked up, and netizens has came to know about this, netizen has gone crazy. आपने ट्विटर का एक छोटा सा शॉट देखा भी होगा उसके लिए। Now, from where की पूरी speech का पूरा हिस्सा क्या था? Of course, many of you wouldn't know Nepali. I'm presuming that. अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है. Then I may not have to explain the crux of what he has actually said, spoken in the entire speech. But those who don't know the Nepali और उनको जो speech है वो समझ में नहीं आई. Let's just talk about what he did. He said. So in the news, he talked about Mr. Dopali claimed he sparked by saying that yoga originated not in India but in Nepal, and
it actually happened much before even the existence of India as a nation. तो भारत जब एक देश बना भी नहीं था तब apparently नेपाल ने योगा बना चुका था. And there was no country like India because there was several fringe state when yoga came into practice. तो जो India claim कर रहा है कि कि this is from where somewhere yoga started, which we'll see in history कि योगा कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा थोड़ा हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे. But this is what Nepal is saying कि much before India as a nation, as an identity was established, योगा पहले ही मतलब नेपाल ने establish कर दिया था, नेपाल में योगा आ गया था. Now, very important thing in here. It's important things to like see is that कि to an extent he is right. That yoga was established much before India as a nation came into being. हाँ, मतलब भारत एज अ नेशन जाना नहीं जाता था तब योगा बन गया था. But on the similar lines, Nepal also cannot claim the to have the yoga as their only heritage. Because उस समय अगर इंडिया नहीं था तो नेपाल भी नहीं बना था, राइट. तो नेपाल एज अ नेशन उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है. नेपाल की एग्जिस्टेंस बहुत ही रिसेंट है, मच आफ्टर इंडिया की एग्जिस्टेंस आई थी. नेपाल की एग्जिस्टेंस भी बहुत ही रिसेंट हो जाती है. सो इफ डिबेट अगर कभी लार्ज जाती है एंड यू फाउंड योर सेल्फ इन दैट एंड कोई आपसे पूछे कि साइड ले लीजिए, देन यू कैन टॉक अबाउट इट वाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बिकॉज इंडिया, नेपाल, आप चाहे इंडिया देखें, नेपाल देखें, भूटान देखें, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, इस पूरे एरिया को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. एंड समवेयर द हेरिटेज कैन बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंटल हेरिटेज. जैसे आप कंधार देखते हो, जैसे आप बोलते हो कि तक्षशिला है, या फिर ये जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज थी वो कहीं इंडिया के टॉप पे यहाँ मिलती है, जो कि अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच जाती है. तो जो हमारी हेरिटेज है ये हम सबकी हेरिटेज है. सो लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आराम से अपनाइए, सभी ये सब आपका है, आप फायदा उठाइए इसका. और नाउ लेट्स गो अहेड इन द न्यूज, दैट इज योगा से होगा. सो ये तो था मिस्टर ओली के क्लेम, बट अब थोड़ा सा योगा को समझते हैं. बिकॉज वी हैव टू इवन डिबंक व्हाट ही इज बीइंग सेइंग कि नेपाल ओनली लाइक योगा जो है वो नेपाली हेरिटेज है. वी आर नॉट, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल स्टैंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक, बट लेट्स जस्ट फिगर आउट कि कहाँ से योगा की शुरुआत होती है. सो व्हाट इज योगा? सबसे पहले लाइक एनीबडी कुड हैव टॉक्ड अबाउट, और आई एम श्योर सुबह सुबह आप भी कभी एक आध बार कोशिश तो जरूर करते होंगे. मे बी आपने कई बार प्लान भी किया होगा कि ओके टुडे मॉर्निंग आई विल डू दिस और टुमारो. और वो जो कबीर दास कह गए थे ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि वो कल तो कभी आना ही नहीं था. तो मे बी शायद बहुत सारे आपकी लाइफ में योगा नहीं आया होगा, बट आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप योगा थोड़ा प्रैक्टिस करें. और शायद ये चीज मैं खुद को भी बोल रही हूँ. नाउ understanding what is yoga is that it has originated from Sanskrit word yoking. Yoking means union. ये वो वाला yoking नहीं है जो हाथ से दो फिंगर बना के आप योग कर देते ना. This is not that yoking. It is union. That means union of physical, mental and spiritual practices. That union include union of individual with the universal subconsciousness. It is believed, Indian philosophy में हम मानते हैं कि एक हमारी conscious state होती है, जो कि साइंस भी मानता है. At least psychology practice this only, social science. Then after that is a subconscious mind. And आपने book भी पढ़ी होगी, Power of Subconscious Mind, how आप subconscious mind को train करके you can achieve so much in your life, blah 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 blah. And definitely you must have read this. It's a good book. And I haven't read it completely. Conscious है, subconscious होता है. उसके बाद we believe कि there is a superconscious mind. Superconscious mind, that means a universal mind. And person who is in yogic state actually forms a union in between the three. Right. अभी तो आप सिर्फ अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यूनियन में लाने की कोशिश करते हैं. समटाइम यू कॉन्शियसली थिंक समथिंग एल्स, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड may be making you do something else in your life. So like आप यहीं पे struggle करते हैं. Yoga talks about not just conscious and subconscious mind. There is an upper level, that is subconscious level. And वहां तक इंटीग्रेशन करने की बात योगा में होती है. So yoga is about union. It is about union between individual consciousness with the universal consciousness. So it establishes a harmony in between the mind and body and man and nature. So everywhere there is a harmony. सबके बीच में आपका माइंड और बॉडी है, आपका मैन और नेचर है. सो दैट इज अबाउट योगा.
Now moving ahead, according to modern scientists, like science जो इसके पीछे है, that is this कि modern science believe कि everything is a manifestation of same quantum firmament, कि हम सब ना modern जो अगर आप जाएंगे जो string theory है, string theory believes कि we all are energy, मतलब आप छोटे से एटम जो जाओ, एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे जाओ, एंड इट इज बीइंग एस्टैब्लिश कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं. सो वी बेसिकली आर एनर्जी, we are like bottle of energy and like somewhere bottled up in a body. और जब आप बॉडी के सेंस को भुला दोगे तो ये सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कि all the bodies are connected to yourself and then you realize कि all of you are very connected, just your energies are bottled up. Imagine this kind of thinking, you know, you are like this bottle, because of this consciousness of a bottle, the air inside is not able to realize कि वो सारी की सारी air का ही part है. Entire air in the sky and the air in this bottle is same, but bottle के अंदर आके उसके अंदर bottle की ही consciousness हो गई है. Yoga is about breaking that myth that you are this bottle, that you are in fact you are an air. तो इसको अगर समझा जाए तो कि ऐसा है कि आप तो हवा है और पूरे यूनिवर्स की जो हवा है वो एग्जिस्टेंस आपसे मैच करती है, बट आपने एक बॉटल की शेप ले ली है बिकॉज आप उसके अंदर जा चुके हैं. बट डू नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द बॉटल ओनली. So that is about yogic. अगर आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो योगा talks about oneness of existence. Now let's talk about this was philosophical aspect. अब origin of yoga, because theory there is a difference between knowledge and wisdom, right? A knowledgeable person would know many things, but a wise person knows how to apply those many things. Those क्या वो एक दो को भी, इसको अगर 10 पता है ना और उसमें से एक को भी अप्लाई नहीं कर रहा, that he is not a wise person. But a wise person would know at least अगर 2 तो वो 2 को भी ढंग से अप्लाई करने की कोशिश करता है. So that is where you're going from knowledge to wisdom. And now इसके बाद आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, but how much you're going to apply is going to make a difference. Including in your life, in your exams और जहां भी हो. So now let's just unearth the yoga कि कहां से शुरू हुआ. Now going ahead is that in pre-Vedic times सबसे पहले हम मानते हैं कि even before the Vedic times, in pre-Vedic times, जो Indus Valley civilization जिसको हम कहते हैं कि हड़प्पन civilization जब आई थी, तभी हमें इसके अर्लियर एविडेंसेस मिल गए थे. आपको बहुत पुराने एविडेंसेस तो वहां से मिल जाते हैं, जिसका एग्जांपल है हमारी पशुपति सील. आप देख सकते हैं दिस इज अ पशुपति सील, और मतलब दीज वर यूज्ड एज अ करेंसी एट दैट टाइम, कि जब सिविलाइजेशन आपस में एक दूसरे के साथ वो खर्चा पानी चलाती थी, तो अब तो आप सिक्के यूज करते हो, आपकी इनकम पैसों में आती है, करेंसी में आती है. उस समय सील इनकम का काम करती थी, वो करेंसी का काम करती थी. और यूजुअली जैसे आज की करेंसी में इंडिया बनी होती है, समथिंग सिग्निफिकेंट आप बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे महात्मा गांधी की पिक्चर है. सो एट दैट टाइम स्पिरिचुअलिटी और गॉड रिलीजन दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब एटलीस्ट पशुपति वॉज लाइक, they say कि there is no existing evidence of religion, ऐसे कोई religious priest मतलब बहुत strong priest के existence नहीं थी, but religion के evidences आपके मिल जाते हैं. तो पशुपति seal was considered as an example of कि pre-Vedic time पे हमको कैसे evidences मिलते हैं. अब आज आते हैं वैदिक टाइम पे, हम एक के बाद एक chronology सीखेंगे. देखिए अमित शाह ने chronology आपको सिखाई होगी, अब हम chronology आपको बताते हैं. Now some believe that Vedic period help in refinement. मतलब ये अब यहाँ से 2 contradictory theory आ जाती है कि प्री वैदिक टाइम में हड़प्पन पीरियड में एग्जिस्ट करता था और वैदिक पीरियड ने आके उसको रिफाइन कर दिया, विच इज एक्चुअली मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी, कि पहले से ही, बिकॉज दिस इज लाइक बहुत योगिक पोजीशन में दैट पर्सन इज सिटिंग, मतलब एग्जिस्टिंग एविडेंस है. बट देन अदर थ्योरी बिलीव कि नहीं वेदास आर्यंस वो नहीं होते कि आर्यंस न्यू एवरीथिंग, सनातन धर्म से वही सब कुछ जानते थे. So they believe no, Aryans knew everything, वैदिक पीरियड पे ही शुरू हुआ था. But actually the evidences तो suggest कि उससे पहले भी योगा कभी एग्जिस्ट करता था. Now but first time जो योगा एज अ वर्ड, एविडेंसेस तो पहले मिल जाते हैं, बट योगा एज अ वर्ड के जो पहले एविडेंसेस हैं वो हमें ऋग वेदा में मिलते हैं. आपको पता है इंडिया में लाइक now you know कि इंडिया हैज 4 फंडामेंटल वेदास, लाइक जहाँ पे इंडियन फिलोसफी की नॉलेज मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. तो उसमें से जो आपके ऋग्वेद में योगा वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया है, डेडिकेटिंग टू राइजिंग सन गॉड इन द मॉर्निंग. सो मतलब सूर्य को नमस्कार करने के लिए योगा किया जाता था. नाउ
एंड जो उपनिषद में जो बेटर रेफरेंस है वो बृहदारण्यका उपनिषद था, उसमें मेंशन किया गया था। इन दी अर्लीस्ट हिंदू उपनिषद थे जो बात करते, तो ऋग वेदा में उपनिषद ऋग वेदा में मेंशन किया गया है और बृहदारण्यका उपनिषद में इनको मेंशन किया गया है। Now let's move ahead. That is in the pre-classical era. Now in this like systematic जो योगा कॉन्सेप्ट है that emerged in 500 to 200 BCE, मतलब वो आपका थोड़ा लेट जाके इमर्ज करता है, 500 से 200 BCE के आसपास इमर्ज करता है। जैसे अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, मिडिल उपनिषद जो है, भागवत गीता टाइप जो है, लाइक लेटर ऑन सिस्टमेटाइज होता है। तो यू माइट बी थिंकिंग लाइक हम तो थोड़ा सा योगा को एसोसिएट करते हैं कि भागवत गीता में हमने देखा था, बट एक्चुअली उससे पहले भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह इसके बारे में बात कर चुके थे। तो जो सिस्टमैटिक जो बातें की गई हैं योगा के बारे में वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उपनिषदिक टेक्स्ट हैं जो बीच में आते हैं, नॉट द अर्लियर वन बट द लेटर वन थोड़ा सिस्टमेटाइज हो जाता है। भागवत गीता में विल टॉक अबाउट हाउ भागवत गीता में ये आता है। एंड देन बुद्धिस्ट, जैन एंड आजीविकास वर एक्चुअली जिन्होंने साइको फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की थी, जैसे ध्यान में बैठना। ध्यान इज अ मुद्रा through which a person is like doing a yoga. It's a perceived yoga, जब वहां पे अपनी सांस पे ध्यान देके the person was realizing the self, अपने माइंड को इतना पीसफुल स्टेट में ले जाए कि वो सेल्फ को रियलाइज कर सके। It is said truth is always there, but then there is a layer in between जिसे हम देख नहीं पाते। अब ये कुछ ऐसा है, इसका कंपैरिजन जो बुद्धिज्म में करते हैं कि आप ये नदी है और नदी के बॉटम में क्या है, सच कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि गहराई में कहते हैं ना सच गहराई में होता है, तो कहीं बॉटम में वो मतलब ट्रुथ लाइक अ सन इज हाइडिंग इन देयर, बट यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज आपके जो थॉट्स वो इतनी वाइब्रेंट होती है, आई वुडंट से वाइब्रेंट बट बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, तो वो कांस्टेंट उथले पानी जैसे ऐसे उछलती रहती है। अब इस जो उठान है आपके थॉट्स का, वो आपके सच को देखने नहीं देता, परसीव नहीं करने देता। दिस इज व्हाट योगा बिलीव कि ट्रुथ इज लाइक इस वेसल में कहीं छुपा हुआ है, यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है आसपास, बट जो आपकी सोच है, आपका विचार है, वो इतना ज्यादा उथला पुथला है कि वो आपको देखने नहीं दे रहा। तो मेडिटेशन इज अबाउट कामिंग योर माइंड सो दैट यू कैन सी द ट्रुथ। मतलब वो बॉटल वाला जो ट्रुथ है ना कि आपने अपनी आइडेंटिटी अभी बहुत छोटी कर रखी है, आप तो सबसे कनेक्टेड हैं और आप पूरे इंटायर यूनिवर्स को अपने अंदर रख सकते हैं। दैट ट्रुथ यू कैन ओनली परसीव विद अ काम माइंड। सो दिस इज व्हाट योगा बिलीव्स। नाउ लेट्स मूव अहेड, दैट इज मूविंग अहेड विद द भागवत गीता, कि हमने देख लिया कि दैट एक ट्रुथ जो आपको रिवील किया था किसने, बुद्धिज्म ने। अब एक ट्रुथ आप विद सेम कॉन्टिनेंस ऑफ द ट्रुथ आपको भागवत गीता ने रिवील किया। भागवत गीता इज अबाउट एग्जिस्टिंग ट्रुथ वाज देयर, बट लेटर जितने भी रिफाइनमेंट होते हैं ना वो आपको पाथ चेंज करते चले जाएंगे। नाउ देयर विल बी एडिशन ऑफ पाथ। भागवत गीता 3 तरीके बताती है, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। कर्म मीन्स तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करने से हमें वी कैन रियलाइज आवर ओन सेल्फ, मतलब काम करके भी आप सिर्फ काम करते रहो एंड मर्ज योरसेल्फ इनटू द एनी वर्क यू डूइंग। आप चाहे पढ़ा रहे हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, इफ यू कंप्लीटली इमर्स योरसेल्फ इनटू द वर्क, मतलब जो काम आप कर रहे हो आपका माइंड इतना इमर्स हो जाता है उस काम में कि अपने इनर पोटेंशियल को रियलाइज करने लगता है और अपने आप को पहचानने लगता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसको कर्म योग कहते हैं। दूसरा भक्ति योग होता है कि दैट मीन्स यू आर नॉट लाइक अब देखो हमसे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, डिवोशन, दैट इज लव। इट इज सेड लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, एंड दिस नॉट इज अबाउट लाइक जस्ट लाइक लव बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब ये यूनिवर्सल लव के बारे में बात करते हैं। व्हेन यू लव एवरी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने माँ बाप, अपने माता पिता से लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को भी और अपने बॉयफ्रेंड को भी, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चे, उनसे भी बियॉन्ड आपकी लाइफ चाहती है, एंड यू आर एबल टू लव एवरी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इक्वली। जब आप सबसे बराबरी से प्यार कर पाते हैं, एज इफ योर ओन आपकी जो छवि है, एज इफ योर ओन शेडो इज एक्चुअली लिविंग इन देम, और जो कि शेडो नहीं है, लाइक इट इज यू हु आर लिविंग दैट लाइफ, दैट इज कॉल्ड भक्ति योग। अगर आप उस तरीके का लव एंड डिवोशन अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, देन इट इज सेड कि आप लाइक यू हैव अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन। सो दैट इज भक्ति योगा। एंड ज्ञान योग इज अगर आप उस नॉलेज को इंटरलाइज कर लें, मतलब आप नॉलेज से विजडम की तरफ चले जाए, आपको पता चल जाए ये चीज कि देखो सब जो आप ये तो सब छलावा है, आपको लग रहा है कि ये बॉटल 1 है, ये बॉटल 2 है, इसमें मैंगो का जूस है और इसमें ये नहीं, सब में एक ही चीज है, एक ही हवा है, चाहे कलर नीला कर दो, पीला कर दो, एक ही हवा है, दैट इज ज्ञान योग। नाउ लेटर ऑन
इसको रिफाइनमेंट मिलती रहे, जैसे लाइक पाथ हमने कहा ना बदलते रहे, तो पतंजलि वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन। अब आपको लगता होगा कि पतंजलि वाज द वन जिसने योगा को फाउंड किया था, नहीं, पतंजलि वाज द वन जिन्होंने एक और मेथड आपको दिया था जिसको कहते हैं राजयोग मेथड ही गेव, एंड ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल, लाइक दिस वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी। उससे हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आ चुके थे। थोड़ा सा मैं आपको लाइक आई एम नॉट गोइंग इन ब्रीफ, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो इट इज लाइक मीमांसा, सांख्य योग, एंड देन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा थी, फिर आपका पतंजलि थी। सो दीज वाज 6 षड दर्शन जिसको कहते हैं वो एग्जिस्ट करते थे। तो उसमें से एक योग था जो पतंजलि ने फाउंड किया था, एंड ही टोल्ड द 8-fold पाथ टू रीच रियलाइजेशन। उसको कलेक्टिवली राजयोग कहते हैं। उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी। नाउ आफ्टर राजयोग तंत्र योग केम इनटू बीइंग। नाउ तंत्र योग, आपको लगता होगा वो तंत्र मन चैंटिंग इज द ओनली थिंग, नहीं, तंत्र योग वाज अबाउट बैलेंस। यिंग यांग नहीं होता चाइना में, यिंग यांग, यू विल रियलाइज द फिलॉसफी हैज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, ट्रुथ हैज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। इट टॉक्स अबाउट, इससे पहले क्या था, इससे पहले ऑल द योगिक थॉट्स दे हैड द इनहेरेंट बायस अगेंस्ट द बॉडी। अब आपने बॉडी को वेसल मान रखा है ना, दिस इज द वेसल जिसकी जो एक्चुअली एंड आप क्योंकि आप खुद को सिर्फ इस बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम कि आप अपने आप को एयर के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, राइट? सो अर्लियर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कंसिडर कि दिस वेसल इज द इविल, मतलब जब तक आपके अंदर ये रियलाइजेशन रहेगी तब तक आप रियलाइज नहीं कर सकते। दिस वॉज चेंज बाय तंत्र योगा एंड टॉक्ड अबाउट कि ऐसा नहीं है, यू हैव टू लाइक ये जो नेगेटिव फीलिंग है इसको हटाओ, इवन दिस वेसल आप यू मे हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट कि आप सिर्फ ये वेसल हो, अब आप इससे बड़े हो, बट इवन दिस वेसल इज अ होली वेसल। आपको ये मीडियम मिला है रियलाइज करने के लिए, अगर आपके पास ये मीडियम ही नहीं होगा तो आप रियलाइज कैसे करोगे, राइट? सो दिस वॉज अबाउट सेल्फ लव वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ओके डू अपने आप को जरूर यूनिवर्स को रियलाइज करो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज रिस्पेक्ट द वेसल यू आर लिविंग इन, उसकी भी इज्जत करो इतनी। सो दिस वाज गिवन बाय तंत्र योगा, दैट इज टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर सेल्फ लव करो, एंड दिस इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ योगा जो आप प्रैक्टिस करते हो। तो ये एक तो सेल्फ लव, दूसरा बैलेंस अबाउट मेल एंड फीमेल, हॉट एंड कोल्ड, इंटरनल एक्सटर्नल। वो जो बुद्धा मध्यम मार्ग था ना वो इस फॉर्म में वापस आने लगा यहाँ पे। एंड देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी, अगर मैं आपको बताऊं कभी, कि बुद्धा ऑल्सो प्रैक्टिस द एक्सट्रीम थिंग एंड ही वॉज अबाउट टू डाई। उन्होंने इतना एक्सट्रीम खुद को पेनफुल सिनेरियो में लाड रखा था। देयर वाज दिस वुमन हु केम एंड सेव्ड हिम एट द लास्ट मोमेंट। she saved him, and after which he actually talked about the madhyam marg. He said do practice self realization, उसके लिए काम करो, बट अपने आप को इतना तकलीफ मत दो। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो बुद्धा की स्टोरी आपको ये सिखा सकती है कि द बैलेंस इज नाइस। अब आते हैं मॉडर्न फेस, लाइक इसमें जहां पे हठ योग भी आ जाता है, जहां पे हठ योग वाज दे हैड द प्रॉब्लम कि अब रियलाइज कैसे करें, बिकॉज तंत्र योग में क्या है, बैलेंस तो है बट मैथड्स थोड़ी कम है, सिर्फ चैंटिंग वगैरह है। सो हठ योगी व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एनिमल कि इतने लॉन्ग टाइम पे ये एक पोजीशन में कैसे रह पाते, तो वो उनको इमिटेट करने लगे। And after the imitation, they realize कि oh, this is also a good method of realizing yourself. And then so that is hठ योगा। अब तक मतलब वो जिद पे अड़ जाते हैं कि यही करना है, और वो थोड़ा एनिमल बिहेवियर पे, मतलब दैट इज लाइक, इसीलिए पशुपति, रिमेंबर पशुपति, लाइक पशु, एनिमल, लाइक यू जस्ट सी कैसे एक थॉट दूसरे से कनेक्टेड है। आपको लगता होगा तंत्र योग अपनी इनिशियल फिलॉसफी को भूल चुका है, बट अभी आपने क्या देखा, नहीं, तंत्र योग वही वापस मध्यम मार्ग को लेकर आ गया, हठ योग वही इंडस वैली सिविलाइजेशन पे चला गया। देखिए आपको कैसे पशुपति की फॉर्म में नहीं शो किया गया कि यू आर बेसिकली इमिटेटिंग एन एनिमल। अब वो पशुपति पशु की फॉर्म में ही सिटिंग इन हेयर एंड ही कंपेयर हिमसेल्फ एज अ पशु, जिसको एक उसमें लेकर आना है। दैट इज व्हाट लाइक हठ योग बिलीव कि योर सेंसेस आर लाइक पशु, और वो पशु के जैसे फॉलो करती रहती है सिर्फ अपनी डिजायर्स को। यू हैव टू कंट्रोल देम, और कंट्रोल करने के लिए पशु की जैसे ही वो खुद को पेड़ के जैसे इमिटेट करते हैं, वो पेड़ के जैसे, एक दरख्त के जैसे खड़े हो जाएंगे, और दरख्त के जैसे खड़े होके वो बोलते हैं कि इन दिस पोजीशन वी कैन रियलाइज आवरसेल्फ। तो देखिए उन्होंने कंपेयर भी खुद को पशु जैसे किया कि सेंसेस हमारे कैसे पशु जैसी है, इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उनको कंट्रोल भी पशु जैसे किया जा सकता है कि आप उनको डायरेक्शन दो
and you can realize yourself. So this was a very like important theory जो कि हठ योग ने दी थी. Whatever method per se like आपको सूट करे, do go with it, because Rumi said we all have the piece of truth with us and we believe कि our version is true. So do have that tolerance in you कि any method can lead you to the truth. आप सब वहीं जा रहे हैं, बस रास्ता आप सबका अलग है. And I hope you realize it soon. अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा. बातें तो मैंने बहुत कर ली, अब थोड़ा सा आ जाते हैं थोड़ी मटेरियलिस्टिक लेवल पे. पहले स्पिरिचुअल बातें कर ले, फिर आएंगे. Since yoga help individual connect to cosmic energy, it help realize oneself और oneness of existence, जिसकी बात मैं अब तक कर रही थी. So this was very important benefit कि कैसे हमारी spiritual, और अभी हमने देखा ना, अब well-being is not limited to physical. It is about spiritual quotient into emotional quotient into like your intellectual quotient. आपका ये सब आ जाने चाहिए, आपका तब माइंड आपका पीसफुल होगा. So spirituality has become inherent part of us, जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी को कहीं लिमिट ना कर दें. Now let's go ahead. That is how to improve your hormonal level, mental, like if अगर आप पीस काम ले आते हैं तो जो योगा से आपका हार्मोनल लेवल इंप्रूव होता है. And you know, much of our behavior are guided by serotonin and dopamine. अगर मैं बोलूं कि आपकी इतनी सारी एक्टिविटीज सिर्फ ये हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं कि वहीं पर आपको एक तरफ से आपको सेरोटोनिन मिल रहा है, डोपामिन मिल रहा है, आप वो चीज किए जा रहे हो. आप ड्रग एडिक्ट हो, आप सभी के सब, कि मतलब उस एक चीज को करके ड्रग एडिक्ट मिल रहा है, प्रिपरेशन करके ड्रग एडिक्ट मिल रहा है, किए जा रहे हो, बिकॉज यू आर गाइडेड बाय द डिजायर कि एक दिन तो विल गेट इट. सो मच ऑफ आवर बिहेवियर इज गाइडेड बाय दिस कि अगर कम हुआ तो वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, ज्यादा हो तो वो एक्टिविटी करेंगे. एंड समवेयर अगर ये ज्यादा हो, लाइक ये बैलेंस बहुत ऊपर नीचे हो, तो मूड स्विंग्स होते हैं. मूड स्विंग से एंजाइटी और डिप्रेशन होता है ना. योगा रिड्यूसेस दैट, वो मूड स्विंग्स आपके कम करता है, आपका सेरोटोनिन और आपके डोपामिन लेवल को बैलेंस रखता है. सो इट ब्रिंग्स अ पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ थॉट, आपके थॉट्स को स्टेबलाइज करता है, एक क्वानिमिटी ऑफ माइंड लेकर आता है. So this is about the benefits to the mind. अब आते हैं how the physical well-being हम कैसे लाते हैं. Now yoga provide flexibility and muscles become stronger over the period of time. जब योगा करते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, your muscles become stronger. I wish I could show you like एक आध वीडियो बनाते हैं. Now it also provide the physical strength to the body. Blood circulation आपका अच्छा होता है because आप जितनी physical activity हम करते होते हैं, हमारा blood circulation अच्छा होता है. And each organ of your body benefit from it, especially your lung. वो नहीं करते ऊपर की छोड़ दी, सांस खींची छोड़ दी. हाउ मच योर लंग बेनिफिट फ्रॉम दिस, आप एक बार इमेजिन करके देखिए. दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज करने के लिए. अब चलते हैं हार्मनी विद नेचर. दिस वाज लाइक सेड बाय आवर इंटेलेक्चुअल जो आपके लाइक जिन्होंने हेजेमनी बना रखी थी, और आई थिंक हेजेमनी इज रॉन्ग वर्ड टू से, but intellectual mammoth at that time, that is Mr. like Rabindranath Tagore, he said life is about bringing harmony with nature. और जितना आप नेचर के अगेंस्ट सिन कमिट करते हैं, उतना ही अपनी लाइफ को डिफिकल्ट कर लेते हैं. एंड आई थिंक आप प्रेजेंट सिनेरियो इज एग्जैक्टली सेम थिंग. हम सब इतना सिन कमिट कर चुके हैं नेचर के अगेंस्ट कि अब नेचर हमसे जैसे बदला लेने पे आ चुकी है. सो दैट इज समथिंग वी शुड अवॉइड, और जितना हो सके अपनी जिंदगी को हार्मनी विद नेचर लाइए. And it also talked about bringing emotional intelligence आता है इंडिविजुअल लेवल पे. जब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में सॉलिडारिटी रहती है और दुनिया में पीस रहती है. क्या हम सब यही नहीं चाहते? दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? सो इन दिस टर्म्स योगा हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर यू. आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल थी, और लाइक आई कैन कंक्लूड कि वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस इन आवरसेल्फ. अगर हम अपने अंदर पीस नहीं ला सकते, हम बाहर नहीं ला सकते. दैट्स व्हाई योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद दिस आई कंक्लूड, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी. अभी यहाँ देखिए मिल्खा सिंह आई स्टिल हियर एंड स्टिल रनिंग विद अस. लाइक अभी सीखिए इंस्पिरेशन, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, एंड स्टे कनेक्टेड टू अस. इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और मोर वीडियोस को देखिए. So thank you for staying connected to us. Thank you, and stay healthy, stay happy, and stay connected to AQ by AS.